good afternoon. Welcome to CS Study Circle. How are you all? How are you all? Please reply. And please confirm sound, camera, all perfect. Please confirm fast. Bolo, bolo. All perfect. Okay. So we were doing chapter 14, and in chapter 14 we were done with situational analysis, if you remember. And when I say situations, nothing but environment analysis. And here we do the analysis of external as well as internal environment to know about strength, weakness, opportunity and threats. So when I say about the elements of situation analysis, what are the elements? Product situation, you should be knowing about the product. Then competitor situation, about your competitors. You should be knowing about distribution, environmental factors and your opportunity and your issues. Am I clear? Then we have understood a term called SWOT and TOWS. What is SWOT? Strength, weakness, opportunity and threat. Tell me, what is the major difference between SWOT and TOWS analysis? Tell me. What is the major difference between SWOT and TOWS analysis? Tell me, what is the major difference between SWOT and TOWS analysis? Reply fast. But simple. SWOT has just given us inputs, strength, weakness, opportunity and threats. SWOT has just given us input, strength, weakness, opportunity and threats. But how to use these inputs and make a strategy is explained by TOWS. Yes. SWOT is planning tool, TOWS is action tool. TOWS is a matrix, SWOT is analysis, but what is the major difference? How to use, if you remember, Maxi, SOSTWOWT, yes or no? SOSTWOWT, getting my point? Am I clear? So basically, how to use this SWOT and make a strategy is explained by TOWS matrix. I hope you people are getting my point. Then we started with a very important topic called portfolio analysis, and in this we have started with a topic called BCG. Started with a topic called BCG. What is BCG? Boston Consulting Group. What is BCG? Boston Consulting Group. Yes or no? And that day I had just given you an idea, brief idea about BCG, about Boston Consulting Group. So let's understand again what is BCG. Basically, BCG is a technique by which we are going to do portfolio analysis. It's a technique by which we are going to do portfolio analysis. And whenever I say analysis has to be external environment and internal environment. Analysis has to be external as well as internal environment. Getting my point? Getting my point? So when I say internal, what they have taken in internal? Relative market share. What they have taken in internal? Relative market share. What do you mean relative market share? Relative market share means my share in the market. My share in the market. The more is my share is my strength, the less is my share is my weakness. The more is my share is my strength, the less is my share is my weakness. Getting my point or not? Am I clear? That means x-axis is what? Internal environment. x-axis क्या है? Internal environment है. Yes or no? Then on y-axis what they have taken? Y-axis they have taken market growth rate. On y they have taken market growth rate. See, market growth rate means demand for the product. Demand for the product, and you will be getting attracted towards a product which has high growth rate. Yes or no?
That means high growth rate is opportunity, low growth rate is threat. That means this is which environment? This is external environment, and this represents market attractiveness. Am I clear till here? Please confirm. Am I clear till here? Please confirm. Any issue till here? Any issue till here? Okay. Then after doing, see that means in short, I have on my x-axis, x पे क्या है? Internal environment है, y पे क्या है? External environment है. अगर मैं इसको, इस डायग्राम को, अगर मैं टाउस मैट्रिक्स से लिंक करने जाऊँ, टाउस, ये क्या है? SO, high share is my strength and high growth rate is opportunity. Yes or no? हाँ या ना? ये क्या है? ST, high share is my strength but low growth rate is threat. ये क्या है? WO, my share is less, that's my weakness. My share is less, so that's my weakness, but growth rate ज़्यादा है, that's opportunity. Why would happen? Why? What happened, Gandhija? Okay. Take care. Yeah, go enjoy. Enjoy your dose. And this is WT. WT means low growth rate and low market share. That means that's WT. What have I done? I have linked my taus with BCG. Yes or no? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ, मैंने उस दिन इसे PLC से भी लिंक किया. व्हाट इज PLC? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जैसे हमारी एक लाइफ साइकिल होती है, एज इन द डे वी आर बॉर्न, बर्थ, फ्रॉम ग्रो होते हैं तो ग्रोथ स्टेज, फिर वन डे वी एंटर इन टू मैच्योरिटी स्टेज, फिर वन डे वी एंटर इन टू एजिंग. एम आई क्लियर? जैसे हमारी 4 स्टेजेस होती है, वैसे प्रोडक्ट के भी 4 स्टेज होते हैं. प्रोडक्ट का बर्थ नहीं होता है, प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. am I clear? Then growth again, प्रोडक्ट में भी लकीली मैच्योरिटी होती है. प्रोडक्ट में एजिंग नहीं होता है, प्रोडक्ट में डिक्लाइन होता है. राइट? am I clear? The way we have life cycle, the way product also have a life cycle. तो हमने PLC को भी BCG से लिंक कर लिया था. हाई ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर. हाई लो ग्रेड, लो मार्केट शेयर का मतलब अभी ग्रोथ रेट है, इसलिए मैं एंटर करना चाहती हूँ, पर क्योंकि मैं अभी एंटर कर रही हूँ इसलिए मेरा शेयर कम है. विच फेज इज दिस? प्लीज कंफर्म. PLC को कौन सा फेज है ये? इंट्रोडक्शन फेज. फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, ग्रोथ रेट भी बढ़ती जाएगी और मेरा शेयर भी बढ़ता जाएगा. डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरा शेयर भी बढ़ता जाएगा. तो ये कौन सा फेज हो गया? ग्रोथ फेज. फिर एक स्टेज के बाद क्या आता है? सैचुरेशन आ जाता है. डिमांड कम होने लग जाती है. इसे हम कौन सा फेज बोलते हैं? मैच्योरिटी फेज. एंड लास्ट, जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, जब एक बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, जैसे पहले ट्यूबलाइट्स थी, अब यू हैव दिस क्या, कौन सी लाइट्स है, क्या बोलते हैं?
देखो नाम ही याद नहीं आ रहा है, एलईडी, एलईडी, हाँ मैं एलसीडी, एलईडी एलसीडी, हाँ पहले ट्यूबलाइट्स थी, अब एलईडी है, टूवी बाई ट्यूबलाइट्स नो। पहले वो डब्बा टीवी आता था, आजकल स्मार्ट टीवी आता है। पहले वो डब्बा टीवी आता था, आजकल स्मार्ट टीवी आता है। तो मुझे बताओ, क्या डब्बा टीवी हम लोग खरीदते हैं? तो नहीं, तो डब्बा टीवी की प्राइस क्या हो गई? खत्म, क्या डब्बा टीवी मार्केट से बाहर हो गया? कौन से स्टेज में चला गया? डिक्लाइन स्टेज में। एम आई क्लियर? ओके, तो नाउ अब अंडरस्टैंड करो, क्या मेरे पास, अज्यूम करो मेरे पास 4 बिजनेस है। कितने बिजनेस है मेरे पास? कितने बिजनेस है? 4। चारों को मैंने एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद मुझे चारों के लिए क्या करना है? प्लानिंग करना है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं। तो अपन बाद में सारी थ्योरी वापस पढ़ेंगे। बीसीजी ने 4 थ्योरी दिए, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। बीसीजी ने हमें कितनी थ्योरी दी? 4 थ्योरी दी है, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। नाउ मैं आपको बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट सबका मतलब बताऊंगी। आप बताओगे कि मुझे कौन से बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। बिल्ड मीन्स by increasing investment the product is given an impetus such that product increase its market share. बिल्ड में हम क्या करते हैं? वी बिल्ड अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए क्या करते हो? पैसा डालते हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाए। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्ड का मतलब समझा? सेकेंड, होल्ड। The company cannot invest or it has other investment commitments due to which it holds the product in the same quadrant. Holding a star then there itself is as higher investment to move a star into cash cow is currently not possible. क्या मतलब है इस एग्जाम्पल का? Holding a star there itself as higher investment to move a star into cash cow is currently not possible. What is hold? Company cannot invest or it has other investment commitments to which it holds the product. Harvest का मतलब क्या होता है? Best observed in a cash cow scenario wherein the company reduces the amount of investments and tries to take out maximum cash flow from a said product which increase the overall profitability. Tell me, day to day life में harvesting का क्या मतलब है? टेल मी, डे टू डे लाइफ में हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? नो, कटिंग, कटिंग राइप क्रॉप्स, पकी हुई फसल को काटना इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। पकी हुई फसल को काटना इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। एंड व्हाई डू वी डू दैट? कि उसको बेच के पैसा निकालेंगे। yes, harvesting same यहाँ भी वही है, that you are using your business that it gives you maximum returns. And last, divest, best observed in case of dog's quadrant because which generally divested to release the amount of money already stuck in the business. Divest का मतलब क्या होता है? वो particular individual business को बेच देना। Am I clear? Am I clear? Am I clear till here? ओके, वापस समझाती हूँ। बिल्ड का मतलब क्या होता है? टू ग्रो योर बिजनेस। बिल्ड मतलब बिल्ड करना, आगे बढ़ाना। होल्ड मतलब जो है उसे पकड़ कर रखो। हार्वेस्ट मतलब काट के पैसा निकालो। और डाइवेस्ट मतलब बंद करो। अब सोच के जवाब दो, मैं बिजनेस 1 को, इंट्रोडक्शन को, मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करूँ? बोलो, व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस 1? सोच के जवाब देना। yes, build,
सी, आपको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, आपको दिख रहा है कि ग्रोथ उठाई है, तो आप बिल्ड करने की कोशिश करोगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? पर मुझे एक चीज़ का जवाब दो। सपोज एक बिजनेस में आप भी घुसे, उसी बिजनेस में मिस्टर अंबानी भी घुसे, एक बिजनेस में आप भी घुसे, उसी बिजनेस में अंबानी भी घुसे, कौन बिल्ड कर पाएगा? आंसर अंबानी। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो नहीं बिल्ड कर पाई, मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं ना, होल्ड क्यों? बाहर निकलो, मैं डाइवेस्ट करके बाहर आ जाऊंगी। बॉस, मेरा कॉम्पिटिटर बिल्ड कर गया, वो मुझे बिल्ड करने नहीं देगा। अब होल्ड करके पैसा ब्लॉक करके क्या मतलब है? होल्ड करके पैसा ब्लॉक करके कोई मतलब है? क्या करूं बेटा? बाहर आ जाऊं तो डाइवेस्ट कर दूं। इसलिए इस बिजनेस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। इसे और क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम चाइल्ड। इसे और क्या कहा जाता है? वाइल्ड कैट्स। क्वेश्चन मार्क क्यों कहते हैं? क्या करूं? बिल्ड करने का सोचूं कि नहीं सोचूं? क्योंकि बिल्ड करने का सोचूंगी तो पैसा डालना पड़ेगा, अगर बिल्ड नहीं कर पाई तो फिर मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, और मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं बिल्ड कर गई तो मेरा वन बिजनेस कहाँ आ जाएगा? टू में आ जाएगा। मैं बिल्ड कर गई तो मेरा बिजनेस वन का आ जाएगा, टू में आ जाएगा। मुझे बताओ, मुझे बिजनेस टू को क्या करना चाहिए? फटाफट रिप्लाई करो। बिजनेस टू को क्या करूं मैं? नो, फर्दर बिल्ड करूंगी। सी, ये मेरा ग्रोथ फेज का स्टार्टिंग है, ये मेरा ग्रोथ फेज का एंड है। मैं यहाँ हूँ, मुझे उसको और बिल्ड करके ऊपर लेके जाना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब मुझे बताओ, थर्ड बिजनेस का क्या करूं? दैट इज ओके। इस बिजनेस को क्या कहा जाता है? स्टार बिजनेस कहा जाता है। वाई स्टार? क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम सेल्स मिलता है। थर्ड बिजनेस को क्या करूं मैं? थर्ड को क्या करूं? बस थर्ड में दो चीजें अंडरस्टैंड करना। ये स्टेज कौन सा स्टेज है? मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। कौन सा बेस्ट स्टेज है टू गेट सेल्स? मैक्सिमम सेल्स कौन से स्टेज में मिलता है? मैक्सिमम सेल्स आंसर करो। मैक्सिमम सेल्स मुझे कौन से स्टेज में मिलता है? मैक्सिमम टर्नओवर ग्रोथ में। तो मुझे बताओ, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से स्टेज में होता है? मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से स्टेज में होता है? मेच्योरिटी फेज में। वाई? अंडरस्टैंड करो। आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा है? कॉस्टिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
कोई रिप्लाई नहीं देना है, कोई रिप्लाई देना है कि नहीं देना है? Or should I stop the lecture? If you people don't want to take the pain, I will also not take the pain. Now, what is marginal costing? Selling price minus variable cost is contribution minus fixed cost is profit. Yes or no? Yes or no? तो बॉस टर्नओवर सबसे ज़्यादा ग्रोथ फेज में होता है, पर क्योंकि ग्रोथ फेज में हमें ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो मेरा फिक्स कॉस्ट हाई होता है, इसलिए प्रॉफिट कम होता है. बट बाय द टाइम आई एंटर इन मैच्योरिटी फेज, I have already recovered fixed cost. जब तक मैं मैच्योरिटी फेज में एंटर करती हूँ, तब तक मैं ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर चुकी होती हूँ, और मैच्योरिटी फेज में और फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है. तो यहाँ फिक्स कॉस्ट अगर मैं बोलूँ इज नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट जीरो इज प्रॉफिट. तो मेरा सी इज इक्वल टू पी हो जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? कैश काउस. क्या कहा गया है इनको? इनका क्या नाम है? कैश काउस. व्हाई कैश काउस? Because you're my cow, my business is giving me cash. Am I clear? And last में क्या है? डिमांड भी नहीं है, शेयर भी नहीं है, क्या करूँ बिजनेस को? डिमांड भी नहीं है, शेयर भी नहीं है, what should I do with my business? Divest. Am I clear? समझा कि नहीं समझा? तो इनको क्या कहा गया? इनको डॉग्स कहा गया है. अब क्यों डॉग्स कहा गया है, गॉड नोज. Clear? I hope you are getting my point. Clear or not clear? Yes? So let's go ahead. अब थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेते, क्या बोलना चाहता है. फटाफट पढ़ रही हूँ, जहाँ डाउट आ रहा पूछते जाना. इन BCG इस मैट्रिक्स डेवलप्ड इन द by Boston Consulting Group and is used for evaluation of organization's product portfolio in marketing and sales planning. Basically मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? I am evaluating my each and every business. मैं अपने business को क्या कर रही हूँ? Evaluate कर रही हूँ. Getting my point? Am I clear? और evaluate करके मैं क्या करूँगी? I'll come to know strength, weakness, opportunity and threats, and then I'll be able to formulate a strategy. Clear? Next, BCG analysis is mainly used for multi-category or multi-product companies. But नाचो ना, आज मेरे चार अलग अलग क्या हैं? प्रोडक्ट है, तो मुझे चारों का अलग अलग एनालिसिस करना पड़ रहा है. अगर मेरा एक ही प्रोडक्ट होता तो क्या मुझे कुछ एनालिसिस करना पड़ता है क्या? येस और नो? येस और नो?
बेसिकली कहाँ यूज होता है? मल्टी कैटेगरी कंपनीज में. यहाँ पे हम दो डायमेंशन पे क्या लेते हैं? मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट. एम आई क्लियर? क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउज एंड डॉग्स. हाई, लो, लो, हाई. गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, कैश काउज. कैश काउज प्रोडक्ट, मतलब मुझे बताओ कैश काउज की क्वालिटी क्या है, जल्दी बताओ. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कैश काउज? कैश काउ की क्वालिटी क्या है, जल्दी बताओ. व्हाट हाई अंजलि, व्हाट हाई? हाई मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट. यस और नो? High market share and low growth rate. Cash cow the products which has high market share and low growing market. As the business growth rate of market is low, cash cow gains the maximum advantage by generating maximum revenue due to its higher market share. क्या करता है वो? क्योंकि उसका शेयर हाईएस्ट है ना, तो वो उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता है. Therefore, for any company, the cash cow is a category of products which require minimal investments but ensure high returns. सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होता है? कैश काउ में. This high returns raise the level of overall profitability of the firm because this excess revenue generating can be used to other business. मुझे बताओ, कोई भी बिजनेसमैन घर से पैसा लेके आता है? नहीं. एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पैसा डालता है. तो कैश काउ वो बिजनेस है. कैश काउ वो बिजनेस है जो मुझे क्वेश्चन मार्क और स्टार में पैसा डालने के लिए सपोर्ट करता है. एम आई क्लियर? क्लियर? Strategy for cash cow. Cash cow, the most stable product or service line for any business, and hand strategy includes retention, hold. इसको क्या करना है? होल्ड. एंड राइट टाइम पे क्या कर दो? हार्वेस्ट करके बाहर आ जाओ. क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला है, तो जितना इसको होल्ड कर सकते हो होल्ड करो. और जब आपको लगता है कि ये डिक्लाइन में एंटर होने वाला है, उस टाइम पे हार्वेस्ट करके बाहर आ जाओ. गेटिंग माई पॉइंट? Cash cow is the most stable product or services line for any businesses, and hence the strategy includes retention. As the market growth rate is low and acquisition is less and customer retention is high, thus customer satisfaction. यहाँ पे आपको क्या करना है? आपके कस्टमर्स को होल्ड करके रखना है. तो होल्ड कैसे करोगे? कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दो. Loyalty programs and such other promotional methods form the core of the marketing plan for a cash cow product. Getting my point? आप चाहते हो कि आपके कस्टमर आपके पास रहे, तो you need to be loyal with them. Next chart. The product or services falling in this category are best product or services in the product portfolio. Best क्योंकि profits में सबसे turnover देता है. This is so because for such category products, both market share as well as growth is high. यह strategy क्या है? At all types of marketing, sales promotion and advertisement are used for stars. Similarly, in stars, because of high competition and rising market share, the concentration and investment needs to be high in marketing activities and to increase retain market share. आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बिल्ड करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर पाओगे? आप आपका जो ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जो शेयर ज़्यादा, उसको एंजॉय कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क. Several times a company might come up with an innovative product.
a company might come up with an innovative product which immediately gains good growth rate. इनोवेटिव क्वेश्चन मार्क कौन सा फेज है? इंट्रोडक्शन फेज है. क्वेश्चन मार्क कौन सा फेज है? इनोवेटिव फेज है, मतलब इंट्रोडक्शन फेज है. तो हो सकता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आओ, कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, फट से खरीदना स्टार्ट कर देंगे. However, the market share of the product is unknown. The product might lose customer interest and might not be bought anymore, in which case it will not gain market share. मैंने आपको बोला ना, हो सकता है कि मैं क्वेश्चन मार्क से स्टार पे आ जाऊँ, पर हो सकता है कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और पब्लिक को पसंद नहीं आई. मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और पब्लिक को पसंद नहीं आई. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसे केस में डायरेक्टली मुझे क्या होने लगेगा? बाहर की बाहर, डाइवेस्ट डॉग्स. The product might lose customer interest and might not be brought anymore, in which case it will not gain market share. The growth rate will be gone and ultimately become a dog. See, या तो आप ऐसे मरोगे, या तो पूरी जिंदगी जी के मरोगे. बड़े हुआ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैच्योरिटी में गया, एजिंग में गया, फिर मरा. Am I clear or not clear? Am I clear? On the other hand, the product might increase customer interest and more people might buy the product, thus make product a high market share product. From here, the product can move it to be star and then to a cash cow. Thus, question marks are product which give high returns, but at the same time may also flop and may have to be taken out of the market. The uncertainty gives a quadrant the name question mark. The major problem associated with having question mark is the amount of investment which might need and whether the investment will give returns in the end or whether it will completely be wasted. मतलब क्या वो बिल्ड होगा कि नहीं होगा, और नहीं हुआ तो फिर डाइवर्स हो जाएगा. तो आई मे गेट लॉस, आई मे लूज माई मनी और नॉट. येस और नो? Strategies for question mark. As they are new product with high growth rate, the growth rate needs to be capitalized in such a manner that question mark turns into high market share product. New customer acquisition strategies are the most best strategies for converting question marks to stars or cash cows. मतलब आप कोशिश तो करनी चाहिए कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद चालू कर दें. Furthermore, time to time market research also helps in determining consumers psychologically for the product as well as the possible future of the product, and a hard decision might have to be taken if the product goes to negative profitability. तो आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क में क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या वो टुवर्ड स्टार जा रहा है कि नहीं जा रहा है. Dogs. Products are classified as dogs when they have low market share and low growth rate. Thus, these products neither generate high amount of cash nor require high investments. However, they are considered as negative profitability product mainly because the money already invested in the product can be used somewhere else. डॉग से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो बेटर उसको बंद करके वो पैसा कहीं और यूज कर ले. Clear? Thus, over here, business have to take a decision whether they should divest these products or they can revamp them. क्या divest करूं? मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं. या revamp. Tell me what is my revamp? Tell me what do you mean by revamp? Revamp का मतलब
सुधार के वापस स्टार्ट करना, कुछ तो उसको बोलते हैं रेनोवेट करना। मतलब अगर आपका सपोज घर किराए पे नहीं जा रहा है तो आप क्या करो, या तो बेच दो या उसको थोड़ा सा बेटर करके बेचो। Thus, over the business have to take decision whether they should divest this product or they can revamp them and thereby make them saleable again, which will subsequently increase the market share of the product. Am I clear? Revamp मतलब मेकअप करो, मेकअप। तो डॉग की स्ट्रेटेजी क्या है? Depending on the amount of cash which is already invested in this quadrant, the company can either divest the product altogether or it can revamp the product through rebranding, innovation or addition features. Am I clear? However, moving a dog towards a star or a cash cow is very difficult. It can be moved only to the question mark region. For again, the future of the product is unknown. Am I very clear? बेसिकली पब्लिक क्या करती है, इसको डाइवेस्ट कर देती है कि रीवैम करके वापस बेचना है। यार मुझे बताओ ना, कितने पैसे तो बोलते हैं क्या भैया, कपड़े बदल दिए है तो वही, प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज कर दी है तो वही, कचरा तो कचरा ही रहेगा। तो सीक्वेंस, इन्होंने दो सीक्वेंस दिया है, एक क्वेश्चन मार्क से स्टार एंड देन कैश का, और दूसरा बेसिकली क्वेश्चन मार्क टू डॉग होना चाहिए। भले इन्होंने यहाँ लिखा है, मेरे हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन मार्क टू डॉग होना चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डैश 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 वाला वो सक्सेस सीक्वेंस है और ये डिजास्टर सीक्वेंस है। Success sequence of BCG metrics happens when a question mark becomes a star and finally becomes a cash cow. This is the best sequence which really gives a boost to the company's profits and growth. Success sequence, unlike the disaster sequence, is entirely dependent upon the right decision. Am I clear? Disaster sequence means happens when a product which is star due to competitive pressure might be moved to question mark. See, basically मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन मार्क में ही इशू आ जाता है। एक बार आप स्टार बन जाओगे तो वेरी लेस चांसेस दैट यू गो बैक टू क्वेश्चन मार्क. It fails out from the competition and it moves to dog, and finally it has to be divested because of its low market share and low growth rate. The disaster sequence might happen because of wrong decision making. The sequence affect the company as well as a lot of investment and बहुत पैसा लॉस रहता है. मैं क्लियर? BCG के स्टेप्स कितने? 5. चूज द यूनिट, चूज द मार्केट, कैलकुलेट रिलेटिव मार्केट शेयर, फाइंड आउट मार्केट ग्रोथ रेट एंड ड्रॉ सर्कल्स ऑन अ मैट्रिक्स. सी पहले क्या करो, यूनिट, 4 यूनिट थे अपने हमारे यहाँ. BCG मैट्रिक्स कैन बी यूज टू एनालाइज यूनिट्स, सेपरेट ब्रांड्स, प्रोडक्ट. मतलब आप पहले वो जो बिजनेस बोल रहे हो उनको आइडेंटिफाई तो करो. Which unit will be chosen will have an impact on the whole analysis. Therefore, it is essential to define the unit of which you will do the analysis. Am I clear? Getting my point? फिर मार्केट डिफाइन करो. Defining the market is one which most important things to do. This is because incorrectly defined market may lead to poor classification. जैसे आपको आपका मार्केट शेयर, डिफाइन द मार्केट का मतलब आपको मार्केट डिफाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, if you would do the analysis for the Mercedes-Benz brand in the passenger vehicle market, it would end up as a dog. क्योंकि आपको क्या लगेगा उसका शेयर कितना परसेंट है? 20% है. But it would be a cash cow in the luxury car. Yes or no? Yes or no?
clear? It's important to clearly define the market to better understand the आपको market position पता करना पड़ेगा. फिर आपका share as compared to total share, largest competitors market share. Then find out growth rate and then draw a circle. After calculating the risk, after calculating all the measures, you should be able to plot your brands on the matrix. You should do this by drawing a circle for each brand. Basically हर brand को identify करना पड़ेगा. Am I clear? Am I clear? ये स्टडी समझी क्या? BCG क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Now what is the criticism? मतलब weak points of BCG. We'll take a break after this for 5 minutes. It assumes that a business unit with a higher market share will generate more cash. While it has been observed that a unit that has a high market share needs to keep investing in itself to sustain the share. इनका यहाँ मानना है शेयर ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, पर प्रैक्टिकली जहाँ शेयर ज़्यादा है, शेयर को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? पैसा डालना पड़ेगा. Also, the metric seems to be ignoring interdependence among a corporation's business unit. A dog, for example, may be helping a question mark or a star with cash. Then, a metrics also seems to use broad definition of market share and market growth, overlooking niche market को देख ही नहीं रहे. A unit that makes scooter tires, for instance, may have a big market share in the niche segment, but only a small share in the overall market. The corporation that owns this unit may be using it as cash cow for the benefit of star. Basically आप छोटे मार्केट को देखते ही नहीं, आप बड़े मार्केट को देखते हो. तो उससे आप बड़े मार्केट में तो मेरा छोटा ही बहुत छोटा सा मैं प्लेयर हूँ, बट छोटे मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर हूँ मैं. The metrics has been criticized by for asserting that all companies will identify units or products in 4 quadrants and the unit products will travel through all the 4 quadrants in life cycle. किनका करें सबके 4 क्वाड्रेंट होंगे पर ज़रूरी नहीं है. Market growth rate is only one factor to attract in the industry. Boss, market industry attractiveness मुझे बताओ. Is industry attractive because of only one factor? No, many factors. Am I clear? I hope you people are getting a point. क्या BCG क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज कंफर्म. क्या BCG क्लियर हुआ? तो let's take now the next topic, ENSOF growth metrics. Eiger ENSOF market product growth metrics. First, can you people tell me how will you define the term business? Tell me, how will you define the term business? Tell me, how will you define the term business? सिंपल. आप किसी को पूछोगे ना कि क्या करता हूँ, मेरी ग्रोसरी की दुकान पुणे में है, मेरी मेडिकल की दुकान मुंबई में है, तो बिजनेस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस मार्केट. Business is nothing but a combination of product plus market. Getting my point or not? Am I clear? अब समझना, मुझे अपने बिजनेस को क्या करवाना है? ग्रो करवाना है. मुझे अपने बिजनेस को क्या करवाना है? ग्रो करवाना है. तो ग्रोथ करने के से मैं आप लोगों को पूछने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं पूछूंगी जवाब तो आ नहीं रहे. बिजनेस ग्रो करने के मेनली 2 तरीके हैं, intensification and
Diversification. What is intensification? Growing in existing business. Existing. Is called intensification. Growing in existing business is called as intensification. तो जब मैं existing business में grow करने की बात करती हूँ, that can be done in 3 ways: existing product, existing market, existing product, new market, new product, existing market. मतलब कोई एक चीज़ तो existing होनी ही चाहिए, तभी उसको मैं क्या बोलूँगी? that I am growing by way of intensification. इसको कहा जाता है market penetration और market concentration. इसमें नया क्या है? मार्केट. इसको कहा जाता है मार्केट डेवलपमेंट. और इसे कहा जाता है product development. Getting my point? Getting my point? Yes or no? अंडरस्टैंड करो. जैसे इसका एग्जाम्पल है डेटॉल. डेटॉल एंटीसेप्टिक. डेटॉल एंटीसेप्टिक में क्या होता है? कट बर्न तो डेटॉल लगाओ. अब आज के तारीख में तो इतने हम लोग मैचो मैन जैसे हो गए हैं कि कट बर्न पे कोई डेटॉल लगाता नहीं है, तो डेटॉल की सेल कम हो गई. अब मुझे नए प्रोडक्ट में नहीं एंटर करना, मुझे नई मार्केट में नहीं एंटर करना, तो मैंने क्या बोला? डेटॉल कैन बी यूज इन मैनी वेज. हाइजीन का ध्यान रखना. कोविड चल रहा है, सिचुएशन ख़राब है, एकदम हाइजीन चाहिए. तो जब जब आप क्लीनिंग करो, एट 2 ड्रॉप्स ऑफ डेटॉल. तो डेटॉल की यूजेज बढ़ गया, सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया. मुझे बताओ, क्या मैं नए प्रोडक्ट में एंटर किया? नहीं. क्या नई मार्केट में एंटर किया? नहीं. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब मैं क्लियर? सेकेंड, मार्केट डेवलपमेंट. सपोज मैं डेटॉल लेकिन नई मार्केट में एंटर कर गई, मार्केट डेवलपमेंट. या मैंने यहाँ पे डेटॉल हैंड वॉश चालू किया, यहाँ पे मैंने डेटॉल ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन कर दिया. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Am I clear? Is this clear? And what is the next one? Diversification. Diversification means growing a business by entering new business. यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट है. कॉपी करो, कॉपी करो, फास्ट कॉपी करो. कैन यू सी द स्लाइड प्रॉपर्ली? Done?
Done? Okay. Let's come to this. ENSOF growth metrics, 4 ways to grow a business. First way, market penetration means current product in current market. Product development means new product in current market. Market development means current product in new market. Diversification means new product, new market. What is market penetration? Market penetration strategy is the preferred route to grow for many business because it focuses on selling more of existing product. Emphasis is on escalating market share by making some rigorous marketing promotions or by creating more customer value. Getting my point? Getting my point? मतलब यहाँ पे हम बहुत प्रमोशन करेंगे, डिस्काउंट ऑफर करेंगे, डिफरेंट यूजेज बताएंगे, कस्टमर के लिए क्रिएट वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. हमें मतलब पर इसका डाउन साइड क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है? एग्रेसिव मार्केट पेनिट्रेशन strategies will add to competitive rivalries in the industry and may provoke a price war. मुझे बताओ, what do you mean by price war? Tell me, what do you mean by price war? Tell me, what do you mean by price war? अरे नहीं आता है तो ये तो बोलो कि नहीं आता है. Am I teaching to like lively people जो have lives? कि ऐसे मूर्तियों को पढ़ा रही हो, बस चुपचाप बैठ के सुन रहे हो? मैं अगर 10 में बेचूंगी तो वो 9 में बेचेगा. मैं 9 में बेचूंगी, वो 9 में बेचेगा तो मैं 8 में बेचूंगी. वो 7 में. दिस वाज प्राइस वॉर. इसको क्या कहे? प्राइस वॉर कहा जाता है. और प्राइस वॉर अच्छा नहीं होता है क्योंकि इससे पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम हो जाता है. टू मेक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, द बिजनेस मस्ट बी विलिंग टू थ्रो द कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट. पहला प्रॉब्लम. और दूसरा प्रॉब्लम, increasing exposure to one product market segment can make the business susceptible to future changes as you are putting all your eggs in one basket. आपको एक प्रोडक्ट में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. To replace present product profile with new and better products. To provide products which complements the main product sold by the business. मतलब नया प्रोडक्ट लेके आना. To provide one stop shop by adding new product to value chain, to strengthen or leverage the relationship and to provide added convenience. am I clear? तो हम क्या कर रहे हैं? नया प्रोडक्ट एंटर कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, सब कुछ अंडर वन रूफ, वन स्टॉप शॉप की बात कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, मार्केट डेवलपमेंट. नया मार्केट. तो नया मार्केट कैसा आएगा? बाय न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, making a product available on the internet with the necessary search engine. Second, new geographic market by moving from local market to regional to national and finally international. और diversification क्या होता है? आप diversification के टाइप्स बताएं. There are 3 levels of diversification. Into rated market, into unrated market using existing resources. तो देखो, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने अलग टाइप का दिया है, पर नॉर्मली क्या होता है समझो. देखो, एक तो रेटेड मार्केट मतलब while customers and products are both new, the logic about the move that market sends to the outside world. समझाती हूँ क्या है. Diversification unrelated markets using existing resources and capabilities and diversification unrelated markets which require new resources and capabilities. मतलब आप
इनके हिसाब से अगर मैं समझाऊँ, बेटर आंसर तो कुछ और है, बट युवा मॉड्यूल आपको ऐसे देख रखा है कि एक तो होता है रिलेटेड मार्केट, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को यूज़ करके नए मार्केट में एंटर करना इज कॉल्ड एज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग को यूज़ करके नए में एंटर करना इज कॉल्ड एज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन टू अनरिलेटेड मार्केट, मतलब आप सी बेसिकली अगर मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है, रिलेटेड का मतलब क्या होता है? यू आर एंटरिंग into new business which are related to existing business. You are entering into new business which are related to existing business is called as related diversification. Unrelated का मतलब you are entering into new business which are not related at all to existing business. लिखो ये, लिखो फटाफट। Am I clear? लिखा? लिखा? ओके। तो अब इसको और डेप्थ में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे डाइवर्सिफिकेशन द मोस्ट रिस्की, या नया प्रोडक्ट, नया मार्केट in NSOF, and especially if it requires new resources and new capabilities, it has been for a suicidal cell. तो ये याद रखना, diversification which is unrelated, which requires new resources and new capabilities, मतलब आप completely कुछ नया कर रहे हो जो आपके current resources से, current capability से कोई लिंक नहीं रखता है, तो आप एक तरीके से उनका कहना आत्महत्या कर रहे हो। उसको आत्महत्या नहीं कहा जाता है, उसे बेसिकली कहा जाता है यू आर टेकिंग रिस्क एंड हाई द रिस्क हाई द रिटर्न्स। क्लियर? ओके। तो डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप NSOF ग्रोथ मैट्रिक्स, हाउ टू डेवलप। तो ओरिजिनल मार्केट, ओरिजिनल मैट्रिक्स 2x2 था, एज इन कैसा? प्रोडक्ट, market, existing, new, existing, new, existing product, existing market, existing product, new market, existing market, new product, new product, new market। ये क्या है? 2x2। This is market penetration, this is market development, this is product development, diversification. Getting my point or not?
बट ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है? 2x2 मैट्रिक्स. Ansoff later refined the matrix into a 3-dimensional version which is placed below. Others have turned the matrix from 2x2 to 3x3 by introducing middle categories for expanded market and modified product to give more flexibility to a tool that allows the shading from little different to very different. मतलब existing product और एकदम न्यू के बीच में मॉडिफाइड प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट एंड न्यू टारगेट ग्रुप्स. मतलब यहाँ पे आप किसी को टारगेट भी कर रहे हो. तो ये तो एग्जिस्टिंग प्लस एग्जिस्टिंग है. इसको क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन. ये क्या है? एग्जिस्टिंग प्लस न्यू टारगेट ग्रुप, मतलब डेवलपिंग अ न्यू मार्केट. यहाँ पे न्यू प्लस एग्जिस्टिंग मार्केट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आया. यहाँ पे बोथ आर न्यू. पर ये समझो, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जब न्यू मार्केट है और न्यू प्रोडक्ट है तो उसको पार्शियल डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है. पर आप किसी को टारगेट करके काम कर रहे हो तो उसको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इतना डेप्थ में रिक्वायर्ड नहीं है, पर फिर भी ये याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? पार्शियल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अब ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट टू हैव एक गो थ्रू कर लेना बस. क्लियर? इज दिस क्लियर? एडीएल अभी नहीं लूंगी, उसके पहले दूसरा टॉपिक लूंगी, जी लूंगी. जी, लेट्स टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट विद जी. सो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, हमने बीसीजी पढ़ा. बीसीजी में क्या है? यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर, और यहाँ पे क्या है? मार्केट ग्रोथ रेट. नाउ टेल मी, रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या है? बिजनेस स्ट्रेंथ. एंड मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्केट अट्रैक्टिवनेस. यस और नो? मैंने लिखा था यहाँ पे डायग्राम में. यस और नो? तो बीसीजी ने ना सिर्फ 2 पैरामीटर्स लिए. मतलब बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए उनका कहना है कि मार्केट शेयर इज अ पैरामीटर, एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए मार्केट ग्रोथ रेट इज अ पैरामीटर. तो मुझे बताओ, क्या बिजनेस का स्ट्रेंथ इसीलिए होता है कि शेयर ज़्यादा है? आंसर, क्या बिजनेस का स्ट्रेंथ इसीलिए होता है कि शेयर ज़्यादा है? नहीं. देयर आर मेनी फैक्टर्स. देयर आर मेनी फैक्टर्स. मतलब सेम वे मुझे बताओ, क्या मार्केट इसलिए अट्रैक्टिव हो सकता है कि ग्रोथ रेट ज़्यादा है? क्या मार्केट इसलिए अट्रैक्टिव होता है ग्रोथ रेट ज़्यादा है? क्या और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं? हो सकते कि नहीं हो सकते? गेट योर पॉइंट? मतलब बीसीजी ने सिर्फ एक ही फैक्टर लिया. जी बोलता है आई डोंट वांट वन, आई वांट ऑल. तो उसने मार्केट शेयर को बिजनेस स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर दिया एंड मार्केट ग्रोथ को मार्केट अट्रैक्टिवनेस से रिप्लेस कर दिया.
देखो, मार्केट कैन बी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. ग्रोथ रेट अच्छा है, साइज ऑफ इंडस्ट्री इज गुड, प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कीप्स ऑन चेंजिंग, डिमांड अच्छी है, प्राइस मैक्रो एनवायरमेंट सपोर्ट करता है, सीजनलिटी होता है, लेबर इजिली अवेलेबल है. am I clear? That means you can have something can be attractive because of many factors. and same way business के strength होने के बहुत सारे factors हो सकते हैं. मेरा share ज़्यादा है, my growth rate as compared to my rivals is better, I have a good brand in market, मेरा profit ज़्यादा है, my customers are loyal towards me. am I clear? That means I am good in many terms. I hope you are getting my point. Then second, उसने यहाँ पे हाई लिया, यहाँ पे लो लिया, पर मीडियम भी तो हो सकता है. सपोज 100 स्टूडेंट्स आर देयर, 90 आर कमिंग टू मी, तो मेरा स्ट्रेंथ हाई है. 100 आर देयर, 10 टू कमिंग टू मी, मेरा स्ट्रेंथ कम है. पर 100 है, 50 आर कमिंग टू मी, तो मेरा स्ट्रेंथ 50% है. येस और नो? तो यहाँ पे मीडियम को कंसिडर नहीं किया. कितने सेल्स बनेंगे? 9. कितने बनेंगे? 9. यस और नो? गेटिंग अ पॉइंट? 9 कैसे बनेगी? देखो, हाई मीडियम लो, लो मीडियम हाई. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब अगर मैं इसको ट्रैफिक सिग्नल से लिंक करूं, ट्रैफिक सिग्नल, ग्रीन, एम्बर, रेड. तो ग्रीन मतलब गो, रेड मतलब स्टॉप, एम्बर मतलब कॉशन. सोच समझ के कॉल लो. तो मुझे बताओ, पहला वाला ग्रीन, एम्बर, रेड क्या है? जल्दी जवाब दो. यस, ये ग्रीन हो गया. अब मुझे बताओ, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? थर्ड का क्या होगा? जल्दी जवाब दो. थर्ड वन का क्या होगा? एम्बर, राइट. वाई? एक हाई एक लो है, सोचना पड़ेगा. एक हाई एक लो है, सोचना पड़ेगा. ओके, इसका क्या होगा? 9th वन का रेड. दोनों लो है, डोंट इन्वेस्ट. और अगर इन्वेस्ट कर दिया तो बाहर आ जाओ. am I clear? That way we can plan for all. पर कभी कभी मैजिक इनका कहना है ड्रॉ अ लाइन डायगनली अपवर्ड. जहाँ जहाँ लाइन कट कर रहा है दैट इज येलो, येलो, येलो. ऊपर के तीनों ग्रीन, 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 और नीचे के तीनों रेड, रेड, रेड. कॉपी करो, कॉपी करो राइट नाउ. क्लियर टिल हियर? कॉपी किया? We'll continue this topic tomorrow now. कल
मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं जी पूरा ख़त्म करके मैं एडल भी ख़त्म करके आगे का ऑलमोस्ट इतना ख़त्म कर दूंगी कि उसके नेक्स्ट सेशन में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए. ओके.